یہ رہی گنی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ سردار بغداد نے عائشہ کو سردار میر غوری کے قدموں میں پھینکا تھا۔ نکاح خواہ کو بلاؤ۔ سردار میر غوری کے حکم پر عائشہ کام کرے گئی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے گا۔ عائشہ کے بھائی سے سردار میر غوری کے بھائی کا قتل ہوا تھا، لیکن سردار بغداد نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ عائشہ نے ایک آخری مرتبہ رحم طلب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا جو سب پاک بنا اس کی جانب سے اپنا رخ پھیر گیا۔ اس کے بعد عائشہ کی پوری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو بے حس کر لیا تھا۔ جب اپنے توڑ دیتے ہیں تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ نکاح کے بعد اسے حویلی لے جایا گیا تھا جب ایک عورت گالیاں بکتی عائشہ کی جانب بڑھی، خبردار تائی جان، اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سردار میر غوری کے غضبناک لہجے پر وہ اپنے قدم تو روک گئی تھی، لیکن اس کے منہ سے عائشہ کے لیے مغالطات نکل رہے تھے جبکہ وہ بے حس سی پڑی زمین کو دیکھ رہی تھی۔ ماں جان کہاں ہے؟ اس نے سب لوگوں کے بیچ اپنی ماں کو تلاشنا چاہا۔ ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا، ڈاکٹر کو بلایا تھا، وہ دوا دے کر گیا ہے تو وہ جب سے سو رہی ہیں۔ مبشرہ جو اس کے رشتے میں تائید ذات لگتی تھی اسے تفصیل سے آگاہ کرنے لگی، جسے سننے کے بعد ہی سردار میر کے قدم تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی مبشرہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ عائشہ کی موٹی بالوں والی چوٹی جڑ سے پکڑ کر اس کے گردن کو پوری طرح جھٹک گئی تو درد کے مارے عائشہ کے منہ سے کراہ نکلی۔ بےغیرت بھائی کی بےغیرت بہن! وہ خود تو ڈر کر پیچھے ہو گیا اور اپنی جوان خوبصورت بہن سردار کی جھولی میں ڈال دی۔ سردار میرے ہیں تو اپنی اوقات مت بھولنا، تم بس غنی میں آئی عورت ہو جس کی نہ کوئی اوقات ہے نہ ہی عزت۔ مبشرہ کی زبان زہر اگل رہی تھی اور عائشہ جس نے کبھی اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا تھا اس ذلت کو برداشت کرتی خون کے گھونٹ پی رہی تھی، کیونکہ ذلت خود اس کے اپنے باپ نے بیٹی کی قسمت میں لکھی دی۔ انہیں اولاد نہیں بیٹا عزیز تھا۔ اس بات کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ پھر کسی بات کی تکلیف نہیں رہی تھی۔ اس نے ذلت کی چادر اوڑھ لی تھی، اب گالیاں ملیں یا جوتے یہی اس کا مقدر تھا۔ دوسری طرف سردار میر غوری اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ڈبوں سے لگا گیا۔ وہ ان چند دنوں میں ہی کمزور لگنے لگی تھی۔ بیٹے کے یوں بے دردی سے ہوئے قتل نے اس کے بدن کی جیسے ساری طاقتیں ختم کر ڈالی۔ ماں جان کا اچھے سے خیال رکھو، اگر یہ جاگ جاتی ہیں تو مجھے اطلاع دینا۔ کوثر جو ان کی خاص ملازمہ تھی اس کو سختی سے ہدایت دیتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تو اس نے ایک افسردہ نظر اپنی مالکن پر ڈال دی۔ چند دنوں میں گویا ان کے چہرے کے سارے رونق اور شادابی ختم ہوئی تھی۔ سردار میر غوری وہاں سے نکل کر واپس ہال میں آیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی زمین پر پڑی تھی لیکن مقابل کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو بس ایک منظر ٹھہر گیا تھا، جلتی ہوئی گاڑی اور اڑتا ہوا دھواں۔ اس کے بھائی کا ناحق خون بہا تھا۔ کس قدر وجیہہ، ہنستا کھیلتا زندگی سے بھرپور جوان تھا میر سائن۔ اس کے بابا کے جانے کے بعد اس کی ماں بہت مشکلوں سے سنبھلی تھی، لیکن اب شاید ان کو سمجھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے ان کی طبیعت ہی بحال ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ ہال میں آ کر اس نے عائشہ کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا، وہ بھی بغیر کسی مزاحمت کے۔ اس کے ساتھ کھینچتی آئی، کمرے میں لا کر ایک مرتبہ پھر اسے زمین پر پٹک دیا گیا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا اس کے روبرو عائشہ کا جبڑا اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ تو بس اس کمرے کی حدود میں رہوں گی۔ اپنی ششربار شہد رنگ آنکھیں عائشہ کی نم کتھائی آنکھوں میں گاڑے مقابل کا لہجہ سرد تنبیہ بھرا تھا۔ اس کے جواب میں وہ فقط سر کو جنبش ہی دے پائی۔ میر غوری نے جبڑے کسے عائشہ کے چہرے کو جھٹک دیا۔ عائشہ کے سر سے شال اتر کر کندھوں پر جھول رہی تھی جبکہ اس کی سنہری زلفیں چوٹی سے نکل کر اس چہرے اور گردن کے اطراف میں پھیلی۔ گلابی رنگت میں ملنے والی ذلت نے سرخیاں گھول لی تھیں۔ خمدار گھنی پلکیں مسلسل جھلکی تھی، شربتی لب بھیجے ہوئے تھے۔ اس کی ستواں ناک میں سونے کی نتلی تھی جو اس کے چہرے پر کافی سوٹ کر رہی تھی۔ کانوں میں ماں کی طرف سے تحفے میں دی گئی سونے کی بالیاں تھی۔ ایک کلائی میں اس آخری سالگرہ کا تحفہ تھا جو اس کی ماں نے ہی اسے گھڑی کی صورت دیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں کانچ کی کالی چوڑیاں تھیں۔ اس لمحے ماں کے یاد آئی، دل جیسے درد سے بھر گیا۔ وہ اپنے شوہر کے اس فیصلے پر کس قدر تڑپی تھی۔ سردار صاحب، میری معصوم بچی پر یہ ظلم مت کریں۔ میری بچی بہت معصوم ہے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑے پوری طرح سے سسکی تھی۔ تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنا جوان بیٹا قتل ہونے دوں؟ تمہاری یہ بیٹی ویسے ہی کسی کام کی ہے، اس کی شادی تو ہونی نہیں ہے، تو اچھا ہے کسی کام ہی آ جائے۔ اس کا باپ سچ میں بے رحم تھا۔ عائشہ کو آج پورا یقین ہو چکا تھا انہوں نے کبھی باپ کو شفقت نہیں جتائی، لیکن آج حق جتایا بھی تو بس اسے بطور بنی استعمال کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے بیٹے کی جان بچا سکے۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ عائشہ کے جوڑ کا کوئی لڑکا خاندان میں نہیں تھا، اور جو تھے وہ عمر میں کافی چھوٹے تھے۔ ایسے میں شاید وہ اسے گھر میں بٹھانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جب بات بیٹے پر آئی تو روایت توڑ لی۔ اسے بطور غنی سردار میں غوری کے نکاح میں دے دیا گیا۔
آج کے بعد میرا ہر کام تم سنبھالو گی، میرے حکم کے تابع رہو گی، اگر نافرمانی ہوئی تو پھر سزا بھی پوری ملے گی۔ جس طرح تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو بے رحمی سے قتل کیا ہے، بالکل ویسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ بے رحمی سے پیش آؤں گا۔ مزید گرج برس کے وہ یوں ہی غصے کی حالت میں کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں بڑے سے میٹ پر پڑی سکڑی سمٹی سی لیٹ گئی تھی۔ اس کا دل و دماغ پوری طرح سے تھک چکے تھے، اور یہی تھکاوٹ عائشہ کی نیند کا سبب بنی۔ ویسے بھی اسے خالی پیٹ نیند بہت آتی تھی، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، جبھی اس پر نیند بری طرح حاوی ہوتی اسے ہر شے سے بیگانہ کر گئی۔ یہ کافی تمہارے لیے۔ اسٹڈی میں بیٹھے غوری کے آگے اس نے کافی کا مگ رکھا تھا، جسے شکریہ کے ساتھ اٹھا کر وہ لبوں سے لگا گیا۔ اس فنی کا کیا کرنا ہے؟ ذائشہ کے لیے اس کے لہجے میں حقارت محسوس کرتے مقابل نے اس پر تیز گھوری ڈالی تو فوراً سمجھی۔ تم شاید بھول گئی کہ میں نے نیچے کیا بات کہی۔ اس کے سرد لہجے پر مبشرہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی، دراصل میں تو امی کی وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے گھر کے کام کاج میں لگانا چاہتی تھی، کہہ رہی تھی کہ کل سے وہ پورے حویلی کی صفائی ستھرائی کرے گی۔ وہ مقابل کے سامنے اچھے بننے کے چکر میں اپنی ہی ماں کا بھانڈا پھوڑ گئی۔ بھائی کو میں کہہ چکا ہوں کہ اسے میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو مطلب کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ بس میرے کمرے میں قید رہے گی یا پھر میرے کام کرے گی۔ وہ میری اجازت کے بغیر اب سانس بھی نہیں لے سکتی۔ وہ اب جو بولا تو لہجے میں وہی مخصوص سردار والا روب بول رہا تھا، جبکہ اس مرتبہ مبشرہ کو اطمینان حاصل ہوا تھا۔ بے شک وہ ونی میں آئی لڑکی بلا کی حسین تھی، لیکن مقابل کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کافی کی چسکیاں پھر رہا تھا، جبکہ مبشرہ ایک کتاب کھولے بظاہر اس کی ورق گردانی کرتی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ چپکے چپکے سردار میر غوری کو دیکھ سرد آہیں بھر رہی تھی۔ اتنا شاندار بندہ اس کی دسترس سے دور تھا۔ کھلتی گندمی رنگت تیکھے نقوش میں مقابل کی مونچھوں سے مزید باروب بناتی تھی۔ ایسا مرد جو سب کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی سب سے الگ نظر آنے والا سردار میر غوری اس کی آنکھوں کا وہ خواب تھا جسے اس کی اپنی ماں نے اس کی آنکھوں میں سجایا۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ خواب بس بد آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ نہ جانے کب تک ٹکٹی کی باندھے مقابل کو دیکھتی رہی کہ کوثر وہاں چلی آئی تھی اس خبر کے ساتھ، ماں جان جاگ چکی ہیں اور اسے یاد کر رہی ہیں۔ ماں جان کا بلاوا تھا، وہ سب چیزیں ویسے ہی چھوڑ چھاڑ تیزی سے وہاں سے نکلا تو مبشرہ نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ماں جان، وہ جو بیڈ گراؤنڈ سے پشت ملائے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اس کی آمد پر اپنی باہیں واہ کر گئیں تو وہ ان کی کھلی باہوں میں سماتے ان کا سر جھک گیا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ طبیعت ٹھیک تو ہے نا آپ کی؟ ان سے الگ ہوتے اس نے اس کے ہاتھ تھام نرم گوئی سے استفسار کیا تھا۔ باہر وہ بے شک ایک ساتھ گیر سردار تھا، لیکن ماں کے سامنے وہ ہمیشہ مؤدب ہی رہتا، اور میر صاحب کے جانے کے بعد سے تو ان کا مزید خیال رکھنے لگا تھا۔ میرا بیٹا میرے سامنے ہے تو میری طبیعت حشاش وشاش سمجھو۔ خیر یہ بتاؤ صبح سے کہاں غائب تھے؟ اسے تسلی دلاتے وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی نرمی سے مسکرائی تھی، لیکن ان کی آنکھوں کی نمی نے میر غوری کے دل کو تکلیف سے بھر دیا۔ وہ خود کو انتہا کا بے بس محسوس کر رہا تھا جو اپنی ماں کی تکلیف دور نہیں کر سکا۔ ماں جان آج جرگہ تھا، بس وہی مصروف رہا میں۔ اس نے خود کو سنبھال کر نرمی سے ان کے سوال کا جواب دیا تو جرگے والی بات پر ان کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا فیصلہ ہوا؟ میرے بیٹے کے قاتل کو کیا سزا تجویز کی گئی ہے؟ وہ مسترف نظر آتی بےتابی سے گویا ہوئی تو اس نے ان کے ہاتھ چھوڑ کر دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی ملی۔ تم کہو، میں سن رہی ہوں غوری، اپنی ماں کی فکر مت کرو، میں کافی مضبوط اعصاب کی مالک ہوں۔ ان کی تسلی بھرے انداز پر اس نے سر سانس کھینچ کے چھوڑی۔ سردار بخت نے قتل کے بدلے ونی دی ہے۔ اس کے ان الفاظ پر ماں جان کو صدمہ لگا تھا، کتنی ہی دیر وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے کیوں ونی لی غوری؟ کیوں؟ میرے بیٹے کا خون پانی کر دیا تم نے، اس کے قاتل کو آزاد چھوڑ دیا، اسے سزا نہیں دی؟ وہ ایک دم سے غصے میں بولتی آخر میں رو پڑی تو اس نے انہیں تھام کر خود سے لگایا۔ ماں جان یہ جرگے والوں کا فیصلہ تھا، تایا جان نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی تھی، آپ جانتی ہیں میں ونی نہیں چاہتا تھا، لیکن سردار بخت نے جان کر جرگے میں پہلی بات ہی ونی کی رہی۔ اپنے بیٹے کے لیے اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی بیٹی پیش کر دی۔ میں نے آج تک ایسا شفاق باپ نہیں دیکھا۔ وہ اپنی ماں کو وضاحت دے رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی من مرضی کرتا، لیکن وہ ماں کے سامنے سردار نہیں، بس ایک بیٹا تھا۔ ہمارے ہاں ونی کی کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تم اچھے سے جانتے ہو، اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ یقیناً تمہاری تائی اب تک اس لڑکی کا برا حال کر چکی ہوں گی۔ وہ اس ونی رسم سے نالا تھی، کافی حد تک اس رسم میں بظاہر کمی آ گئی تھی، لیکن اب بھی یہ رسم کسی نہ کسی طرح پروان چڑھ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، وہ لڑکی میرے کمرے میں موجود ہے اور میں نے دو ٹوک الفاظ میں حکم جاری کر دیا ہے کہ اس لڑکی کو میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میری غوری کی اس بات نے انہیں کافی تقویت دی۔ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جو ان کے بیٹے کے قاتل کی بہن تھی، ہاں لیکن وہ انسانی ہمدردی رکھتی تھی۔ وہ کسی بھی انسان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کی حق میں نہیں تھی۔ میر غوری کمرے میں داخل ہوا تو پہلی ہی نظر سکون سے سو رہی
जायशा तक गई। उसने अपना वजूद चादर से छुपा रखा था, लेकिन मासूम चेहरा सियाह चादर में से आया होते गोया यूं लग रहा था कि काली बदलियों की ओर से चांद निकल आया हो। वो एक नज़र जो मुकाबिल की गहरी होने लगी तो उसने सदत से अपनी नज़रें चुरा ली और जाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद उसकी वापसी हुई तो वो फ्रेश था, नाइट सूट में मलबूस था। इस लड़की ने यकीनन सारा दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वो अपनी माँ ही की तरह बेहिस नहीं था। वो बेशक बनी थी, लेकिन वो उसे इंसान होने का मार्जिन दे रहा था। उसने इंटरकॉम पर मुलाजमा को खाना लाने का ऑर्डर दिया और अब इसके कदम सोई हुई जायशा की जानिब बढ़े। सुनो लड़की, उठो। इसके रोबदार आवाज़ जैसे ही जैसे की समाज से टकराई, वो नींद में धुत हड़बड़ा कर उठ बैठी। नींद में डूबी गुलाबी आंखें पूरी खोले वो हम होफ ज़दा सी चेहरा उठाए मुकाबिल को टुकर टुकर देख रही थी। उसके अंदाज के मासूमियत पर एक लम्हे को मीर गौरी के दिल की बीट मिस हुई थी। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? उसे एकदम सा गुस्सा आया तो इस मर्तबा जायशा खौफ के मारे उठ खड़ी हुई थी। यूं तेजी से उठने पर उसकी शॉल अपने ही पैरों में आई, जिसके नतीजे में वो पीछे को गिरती के मुकाबिल ने सरद से उसके कमर में हाथ डाले, उसे अपनी जानिब खींचा तो वो सीधी उसके वजूद का हिस्सा बनी। आपस का ये टकराव एक लम्हे को दोनों को ही साकित कर गया। जायशा को सबसे पहले होश आया तो वो बौखला कर उससे दूर होती अपनी शॉल खुद पर दुरुस्त करने लगी थी। उसका भाग छोड़ता चेहरा बला की सुर्खी लिए हुए था। मुकाबिल ने उसे यूं सुर्ख टमाटर होते देख सर झुका दिया। वो खौफ से ज्यादा घबराहट में मुब्तला नजर आ रही थी। जाओ और मुंह धोकर आओ। मुलाजमा खाना ला रही थी। उसके करक अंदाज पर वो झट जज्बात में सर हिलाती तेजी से वॉशरूम में जा घुसी। इसके मंजर से हटते ही वो बेड की सिमत आया और अपना लैपटॉप साइड टेबल से उठाकर साथ ही मोबाइल चार्जर पिन से अलग किया। इतनी देर में मुलाजमा भी खाने की ट्रे दे गई थी। जायशा बाथरूम से बाहर आई तो मुकाबिल ने उसे पुकार लिया। सुनो लड़की, खाना मेज पर रखा है, खाकर सो जाना, इधर उधर जाने की कोशिश मत करना। संजीदगी से हुक्म जारी करते वो कमरे से मुल्का स्टडी रूम में चला गया। उसके जाने के बाद जायशा ने मेज की जानिब देखा। देखकर ऊपर की जानिब सर उठाया तो आंखों से कई तशक्कुर भरे आंसू बहते उसके रुखसार को भिगोते चले गए। उसने खाना खाकर शुक्र अदा किया और ट्रे वहीं छोड़कर उठती वजू बनाने चल दी। बेवक्त की नींद की वजह से उसके मगरिब कज़ा हो गई थी। ड्रेसिंग रूम की दराजें छानते उसने जाए नमाज बरामद की। मगरिब और इशा अदा करने के बाद अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। अपनी और आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने ढेर दुआएं मांगी थी। जाए नमाज तय करते उसने वापस उसके मकाम पर रखी और पहनी हुई शॉल ढीली करती वो वापस इसी जगह पर लेट गई जहाँ शाम में लेट कर सोई थी। लेकिन इस मरतबा उसने सर के नीचे सोफे से उठाकर कुशन रख लिया था। सरदार मीर गौरी इतने भी चिल्लासित नहीं है। मुकाबिल के शानदार सरापे को तसव्वुर में लाते उसके लब खुद बहुत दिलकश मुस्कुराहट में ढल गए। उसने साइशा को अपनी ताई की मार से बचाया और उसे खाली पेट सोने नहीं दिया। वो सच में एक अच्छा इंसान था। बेशक उसका रवैया काफी सख्त था, लेकिन अमल में सख्ती नहीं थी। अगर अमल भी मुकाबिल का सख्त होता तो शायद वो उसे हक बजानी भी समझती। कहते हैं ना कि पहला तासुर ही आखिरी तासुर होता है, तो सरदार मीर गौरी का पहला तासुर उसके दिल के कोरे कागज पर नक्श हो चुका था। अगले दिन उसकी आंख खुली तो हस्बे आदत उसने दोनों हाथ उठाकर भरपूर अंगड़ाई दी थी, लेकिन उसकी नजरें जैसे ही सामने की जानिब उठी उसके हाथ बेजान होते उसके पहलू में आ गिरे। मीर गौरी ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बनाते रुक कर उसे घूर रहा था। कल मैंने कुछ कहा था, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मुकाबिल के तर्श अंदाज पर उस शर्मिंदा सी होती तेजी से उठी, लेकिन वही शॉल पैरों में आई तो वो बुरी तरह लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर संभल गई। तो मीर गौरी जो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला था जल्दी से वापस सीधा हो गया। जब इतनी बड़ी शॉल कैरी नहीं कर सकती तो दुपट्टा लो, ये टेंट पहनकर कमरे में रहने की जरूरत नहीं। इस मरतबा उसके लहजे में गुस्से की गरमाइश शामिल थी और साथ ही उसने फर्श फर्श बुरी तरह से ड्रेसिंग पर पटका, जिस सबब जायशा की जान हवा हुई। आज के लिए माफ़ी दे दे, मैं कल से वक्त पर उठ जाऊंगी। शर्मिंदा और खौफ की बदौलत मिनमिनाई थी तो मीर गौरी सर झटक कर उसकी झुकी गर्दन को देख खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करने लगा। अब भूत की तरह खड़ी क्यों हो? मुंह हाथ धोकर नीचे जाओ और मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। मैं क्या खाता हूँ मुलाजमा से पूछ लेना। उसकी दृष्टि से झड़क देने पर वो तीर की तेजी से मंजर से गायब हुई और 2 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आती बगैर मुकाबिल की जानिब देखे उसे तेजी से कमरे से निकल कर भागी थी। जबकि जायशा की इतनी बदहवासी फुर्ती देख मुकाबिल ने दांत पीस डाले। जायशा जो तेजी से सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ रही थी अचानक किसी फौलादी वजूद से टकराई, यूं कि उसके दिन में तारे देखने लगे। उफ, मेरा सर। अपने सर पर हाथ रखे बेसाख्ता वो 2 कदम पीछे हुई तो दिलावर ने उस मासूम हसीना को दिलचस्पी भरी नजरों से देखा। तुम कौन हो?
इस नए चेहरे को देख वो पूछे बगैर नहीं रह सका। वो मुबशिर का बड़ा भाई मीर दिलावर था, जिसकी कमजोरी बस हुस्न ही था, और सामने खड़ी लड़की बला की हसीन थी। मैं वनी में आई हूँ, उसके इस सवाल ने जायशा के अंदर तलखी से भर दी। तो वो इसी तरह कोई से उसकी बात का जवाब देती। उजलत में आगे बढ़ी। सामने भी उसे कौसर मिल गई थी। सुने प्लीज, क्या आप मुझे किचन की सिमत बता सकती हैं? उसके नर्म झरनों जैसे लहजे को सुनकर कौसर ने उसे सर से पैर तक देखा। तुम बनी में आई लड़की हो ना? 30 साल कौसर की संजीदगी से इस्तफसार करने पर वो नम आंखों और सुर्ख चेहरे के साथ फकत सर को जंबिश ही दे सकी थी। ये लफ्ज एक गाली की माने लगता था, और ये गाली उसे नई जिल्लत से आशना करवाती थी। वो सरदार मीर गौरी ने कहा कि मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊं। वो रो देने को हुई तो कौसर को इस प्यारी सी लड़की पर रहम आया। मर्द के किए बुरे अमल की सजा की हकदार हमेशा औरत ही ठहराई गई है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किचन में ले जाती हूँ। मुझे भी बड़ी बेगम के लिए नाश्ता तैयार करना है। वो उसे लिए किचन में चली आई। सरदार साहब सुबह के नाश्ते में गुड़ की चाय, मिर्च वाला ऑमलेट और पराठा और 7 फलों का सलाद खाते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें एप्पल फ्रेश जूस चाहिए होता है। एप्पल जूस तो रेडी है, तुम बस नाश्ता तैयार कर लो। नरमी से उसे हर चीज़ के बारे में आगाही देती कौसर अपने काम में लग गई, तो उसने भी डरते डरते नाश्ता तैयार किया। यूं तो उसे खाना पकाना आता था, लेकिन घबराहट के मारे पराठे का गोल शेप भी खराब हो गया और अंडा भी थोड़ा जल गया। गुड़ वाली चाय तो सभी पीते थे, वो उसे बनानी नहीं पड़ी। नाश्ता टेबल पर लग चुका था और सभी अफराद खाना खाने की मेज पर मौजूद थे। गौरी बच्चे, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? ताई के नरमी से इस्तफसार करने पर सभी की नजरों का मरकज उसे ज़ात हुई थी। इससे पहले वो कोई जवाब देता, जायशा घबराई, नाश्ते के ट्रे लिए वहां चली आई और ट्रे को कपकपाते हाथों से मुकाबिल के सामने रख दिया। वहां मौजूद 3 लोगों की नजरों में जायशा के लिए हकारत उभरी थी, तो वो वही मीर दिलावर की नजरों में इस वक्त भी उसके लिए दिलचस्पी थी। माजन अलबत्ता उसे बगौर देख रही थी। ये क्या है? नाश्ते को एक नज़र देखने के बाद जायशा के रंग उड़े। चेहरे को देख मीर गौली के अंदाज में वही मखसूस रोग। ये नाश्ता है, लेकिन बस थोड़ा सा खराब हो गया। शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वो रूहानी अंदाज में गोया हुई, तो मुकाबिल ने उसे कड़ी नजरों से देखा। अलबत्ता उसके मुतवक्का बेइज्जती का मंजर देखने के लिए मुबश्शिरा बेताब थी। वही आरफा बेगम का बस नहीं चल रहा था कि इस छटांग भर की लड़की को 4 चोट की मार दें, जो उनके भतीजे के कातिल की बहन तो थी ही, ऊपर से उनकी बेटी का हक भी मारा। मैं ऐसा नाश्ता नहीं करता, ये नाश्ता तुम खुद खाओ। उसके दरस्त अंदाज पर वो झट सर हिलाकर लुकमा तोड़ने लगी थी कि मुकाबिल ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बैठ कर तमीज से खाओ। उसके फिर से गुस्सा करने पर वो सर को तेजी से हरकत देती उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी सर झुकाए जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी, जबकि मीर हाकिम ने अपने भतीजे को गुस्से से देखा। ये यहाँ नहीं बैठ सकती, उसे मुलाजमों के साथ बैठकर खाना पीना होगा। ये बनी है घर की फर्द नहीं। वो ज्यादा देर अपना गुस्सा जब्त नहीं कर सके तो बोल पड़े, जबकि उनकी बात सुनती वो ट्रे उठाकर तेजी से मंजर से गायब हुई। ताईजान, बेशक वो वनी में आई लड़की है, लेकिन मेरे निकाह में है। मैंने कल ताई को भी कहा था कि, और अब आपको भी कह रहा हूँ, इसे मारने पीटने कुछ भी कहने का हक बस सरदार मीर गौरी का है। तो आइंदा अगर मेरे हुक्म की हुक्म अदोली हुई तो मेरे हुक्म ना मानने वाला इस हवेली में नहीं रह सकेगा। अजहर संजीदगी से वो अच्छे से अपनी बात इन सभी को बावर करवा गया था, तो मीर दिलावर ने सोलती नजरों से उसे देखा, लेकिन उसे मायूसी हुई। वो बस नहीं चाहता था कि उसके इख्तियार में आई चीज पर कोई दूसरा हक जताए, और ये उसकी आदत बचपन से थी, जो अब यकीनन पुख्ता हो चुकी थी। बेटा, मैं बस उसे अपने सामने देख बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके भाई ने जिस बेरहमी से मेरे भतीजे को मारा, याद आता है तो दिल करता है इस बेगैरत का वजूद गोलियों से भून दूं। मीर हाकिम अपने गुस्से को मुश्किल जब्त किए बोले, तो मीर गौरी ने अपने जबड़े कस लिए, क्योंकि उसकी बात सुनते माँ जान की तबीयत बिगड़ने लगी थी। आज के बाद ये जिक्र फिर नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी माँ अजीज है, और मेरी माँ को कोई तकलीफ पहुंचाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। होश गंवाती अपनी माँ को गोद में उठाए वो सर लहजे में उन्हें तंबी करता तेजी से वहां से निकल गया। आप भी हद करते हैं हाकिम। एक माँ के सामने कम से कम आपको इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अपनी बेगम के बड़ा होने पर वो कुछ शर्मिंदा से दिखाई देने लगे। हम सबको ही सोच समझ कर बोलने और कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि मीर गौरी का गुस्सा बस एक ही शख्स खत्म कर सकता है, मीर साइम, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं। मीर दिलावर की संजीदगी से उन्हें समझाने पर वो बस एक दूसरे को देख कर रह गए। मीर साइम जिस गाड़ी में थे, वो गाड़ी गहरी खाई में गिरकर धमाके से फट गई। इनकी तो लाश भी नहीं मिल सकी, क्योंकि करीबी बहता दरिया भी था। बड़ी बेगम को सब्र भी कैसे आए।
चेहरा देख लेती तो शायद करार आ जाता। अफरा तफरी के आलम में कौसर को दौड़े लगाते देख वो दो मुलाजिम आपस में धीमे अंदाज से बात करने लगे। शन, दांत ने अच्छा नहीं किया, इतने शानदार खुद तर्स इंसान थे मीर साइम सरदार मीर गौरी जितने गसील तबीयत के हामिल हैं, वो इतने ही नर्म खो थे। सच बड़ा जुल्म कमाया दाद हवेली वालों ने। वो इसी तरह चुपके चुपके बातें कर रही थी, लेकिन वहां टेबल पर बैठकर खाना खाती जायशा की समात तक उनका एक एक लफ्ज उतर कर उसे नई तकलीफ से दो चार कर गया। एक माँ की गोद उसके भाई की वजह से उछड़ी थी, वो तो गोया अंदर से मरने वाली हुई थी। वो जिंदा तो थी, लेकिन मीर साइम तो जिंदा ही नहीं था। खाना एकदम उसके हलक में अटका तो उसे जोरदार फंदा लगा। जब वो दोनों मुलाजमाएं होश में आईं, बुरी तरह बौखलाईं। एक ने दूसरी को इशारा दिया तो उसने तेजी से पानी का गिलास भरकर जायशा के आगे किया, जिसे थाम कर वो इसमें से चंद घूंट भर गई। हवास कुछ बहाल हुए तो वह तेजी से उठकर किचन से निकल गई और अब माँजान के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसका दिल मोम की मानिंद पिघल रहा था, आंसू गोया रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँजान का दर्द उसे खुद में उतरते शिद्दत से महसूस हो रहा था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था, उसके पाँव शल होने लगे थे, लेकिन वो यूं ही दीवार से पुश मिलाए, सर पीछे को गिराए, दोनों हाथों को बाहर मिलाए वो बेजान सी खड़ी थी। जब कमरे से निकलते मीर गौरी की नजर उस पर पड़ी तो वो ठिठक गया। फिर दो कदमों का फासला समेट के वो उसके रूबरू हुआ तो उसे हैरत का झटका लगा। उसकी शिगरफी लब हरकत में थे, जबकि आंखों में मुसलसल आंसू बहते उसकी थोड़ी से होते गिरेबान में जज्ब होते जा रहे थे। इसके चेहरे पर दर्द की परछाइयां थी। क्या उसे इसकी माँ की तकलीफ का एहसास था? सुनो ये लड़की, मीर गौरी को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। बस निकाह के वक्त ही उसने मुकाबिल का नाम सुना, लेकिन उसके पुकार पर जायशा के वजूद में हरकत पैदा नहीं हुई। तो मीर गौरी ने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ते हिला दिया, जिस सबब वो हड़बड़ाकर पट से आंखें खोल गई। इन आंखों के खुलने से गोया हर शय थमती हुई महसूस हुई थी। सरदार मीर गौरी को यूं लगा था जिसके मुकाबिल की सहरदारी करती आंखों ने जैसे उसकी आंखों को अपने साथ बांध लिया है। लेकिन ये बस चंद लम्हों की बात थी। तुम अचानक के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? दरिश्तगी से पूछा गया तो वो घबराकर सीधी हुई और चादर खींचकर पेशानी तक लाई, जो आधे से ज्यादा सर से उतर चुकी थी। जायशा के इस अमल पर मुकाबिल के नकूश में मजीद बिगाड़ आया। वो उसका शौहर न था, लेकिन वो खुद को उसके सामने आया करने से घबराती थी। कोई पूछा है मैंने? उसकी खामोशी पर मीर गौरी का गुस्सा बढ़ा। मैं वो माजन को देखने आई थी, उसने बौखलाकर वजाहत दी। ऐसे बाहर खड़े होकर? मुकाबिल के गहरे तंज पर उसकी नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। मैं उनका सामना नहीं कर सकती, शायद मुझे देख उनकी तकलीफ बढ़ जाए। मेरे भाई की वजह से माँजान की औलाद छिन गई, ये बात सोचकर मेरी रगें कट सी रही हैं। मुझ पर एक पहाड़ आ गिरा है, मैं खुलकर सांस नहीं ले पा रही, दिल शिद्दत गम से फट रहा है। एक माँ, 9 माह अपना खून देकर औलाद को पैदा करती है, फिर उसके लिए दिन रात एक कर देती है, और ऐसे में एक बेदर्द इंसान एक मामूली झगड़े की वजह से इस माँ के लाल की जान ले ले, तो इस माँ के दिल पर तो गोया कयामत ही टूट जाती है। दिक्कत आमेज लहजे में वो जूं जूं बोल रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। सरदार मीर गौरी बस साकित सा था। वो बगदाद और उसके कातिल बेटे को तकलीफ देना चाहता था। जायशा के लिए भी उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे। वो इस कदर गुस्से में था कि वो चाहता तो जायशा के साथ बदतरीन सलूक करता, लेकिन सामने खड़ी लड़की के लिए वो जानवर नहीं बन पाया। तुम अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, वो मेरी माँ जान है। ऐसी ड्रामेबाजी करके तुम खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकती। बुरी तरह चिढ़कर उसके लिए सख्त अल्फाज अदा कर गया। मैं खुद को आपके सामने साबित करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपकी मनपसंद बीवी नहीं बल्कि बनी में आई औरत हूँ, जिसका मकाम और हैसियत मुझे अच्छे से बावर करवा दिया गया। ये बस मेरे जज्बात थे, जिसे मैंने आया करके शायद गलती कर दी। मीर गौरी के अल्फाज ने उसे हर्ट किया। जब भी वो सपाट अंदाज में बोलती तेजी से वहां से निकलती चली गई, तो मुकाबिल ने उसकी पुष्ट को शशरबार नजरों से देखा। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि इन मोहतरमा को इस कदर बुरा लग गया? ऊपर से नाम भी बताकर नहीं गई। खुद की कैफियत से अनजान वो बुरी तरह से चिढ़ गया। ये एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था, जिसे अक्सर सवात के गांव के घर हुआ करते थे, पत्थरों और लकड़ियों को मिलाकर बनाए हुए। 2 कमरे और बड़ा सा सहन, जिसके एक कोने में बाथरूम बना था। अलबत्ता किचन गुलवर्षा के कमरे के साथ ही था, जो उसने अपने बाबा से कहकर खुद बनवाया था, ताकि बारिशों के दिनों में वो जल्दी से किचन में जा घुसे, उसे भीगना नहीं पड़े। गुलवर्षा को बारिशें जिस कदर पसंद थी, बारिश में भीगना उसे इतना ही नागवार लगता था। अखरोटी रंग के बालों वाली गुलवर्षा की आंखें बिल्कुल काली थी, कोई तलस्सुम तारी करती, सुर्ख सफेद रंगत, नाजुक सरापा और तीखे नकुश। वो अपने बाबा की लाडली थी, जो एक किराने की दुकान चलाते थे। वो इस वक्त गुस्से की हालत में तैयार दलिये में बकरे की यखनी डाल रही थी। बड़े से प्याले को ट्रे में रखकर उसने साथ ही एक चम्मच और पानी का गिलास भी रखा, और दुपट्टा सरबत दुरुस्त करती मुंह बनाए किचन से निकलकर अपने बाबा के कमरे की जानिब चलती, जहां उसने कुछ देर पहले उन्हें नाश्ता दिया था। ये दलिया वो जख्मी मेहमान के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन उसका मूड बुरी तरह खराब था। ये लो तुम अपना नाश्ता। पलंग पर बैठे खूबरू शख्स के आगे उसने
ٹرے پٹکنے کے انداز میں رکھی تو چائے پیتے گلبرشا کے بابا نے اسے پیار بھری گھوری ڈالی، جبکہ جس کے سامنے ٹرے رکھی گئی تھی وہ اسے دلچسپی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کے نام پر ہر دم غصہ دھرا رہتا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، مہمان سے بیزار نہیں ہوتے۔ ان کے نرمی کے ٹوک دینے پر اس کا مزید منہ کھلا۔ مہمان ایک دن کا ہوتا ہے، اس مہمان کو 2 ہفتے ہو گئے تو یہ اب بلائے جان بن گیا ہے، تڑک کر کہتے اس نے تیکھے چتونوں سے مہمان صاحب کو بھی دیکھا جو پلنگ پر شاہی انداز میں بیٹھا اس کے بنائے گئے دلیے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ورشی اتنا غصہ کیوں کرتا ہے تم؟ پٹھانی لہجہ اردو الفاظ میں ڈھل کر خوبصورت لگ رہا تھا۔ میری دوست کا شادی ہے اور اس مہمان کی وجہ سے ہم یہاں جا نہیں پا رہا۔ روز دوپہر میں سب سہیلیاں مل کر گیت گاتی ہیں، مزہ کرتی ہیں اور ہم گھر میں پڑا بس خدمتیں کر رہا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے خفا سی نظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ اس کی عادت سمجھ چکا تھا۔ پہلے وہ غصہ کرتی تھی، پھر خفگی کا اظہار کرتے، آخر میں اس کا غصہ ختم ہو جاتا۔ بالکل بچوں والی حرکتیں تھی اس کی۔ تم چلی جاؤ اپنے دوست کے گھر، میں اکیلا رہ سکتا ہوں، اب تو میری زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اس مرتبہ باپ بیٹے کی گفتگو میں اس نے نرمی سے مداخلت کی۔ مشورے کا شکریہ، لیکن ہم کسی بیمار کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ناک چڑھا کر بولتی وہ اپنے بابا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی جو پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے بغیر ماں کے بڑا کیا تھا، جس وجہ سے کچھ چیزیں وہ اسے سمجھا سکھا نہیں پائے جو ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ بس وہ لاڈ بھری کوششیں کرتے رہے جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ٹھہرے۔ یہ لو دوا کھا لو۔ ناشتے کے برتن سمیٹ کر وہ اپنے بابا کو دکان بھیج کر واپس اسی کے پاس آئی۔ میرے لیے تم اتنا کرتی ہو، میں مشکور ہوں تمہارا۔ اس کے دلکش نقوش کو پیار سے دیکھ وہ اس کے ہاتھ سے دوا لے کر پانی نگلتا خالی گلاس اسے پکڑا گیا تو اس نے گلاس پاس رکھی میز پر رکھ دیا۔ تو ہماری بات دل پر مت لینا، ہم تو بس منہ پھٹے تو بول دیتا ہے۔ ویسے تم کو سر پر چوٹ کی وجہ سے کچھ یاد نہیں، لیکن تمہاری ماں اور گھر والا تو تمہیں یاد کرتا ہوگا، تمہاری بیوی بچے تمہاری رات رکھتے ہوں گے۔ تھوڑی تلے مٹھی جمائے وہ اب اس کی فکر میں مبتلا تھی، جس پر مقابل نے ہنس کر سر جھٹکا۔ تمہیں کیسے علم کہ میں شادی شدہ بچے والا ہوں؟ اسے گلبرشا سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، جب بھی ٹیک لگا کر بیٹھتے وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ تمہاری عمر دیکھ کر لگتا ہے۔ اس کے پر سے جواب دینے پر مقابل کی ایک آئیبرو اوپر کو اٹھی۔ میں تمہیں اتنا عمر دراز لگتا ہوں؟ اس نے گلبرشا کو آنکھیں دکھائیں تو وہ بری طرح بوکھلائی۔ ارے نہیں بھائی، تم نے ہماری بات کو غلط سمجھا ہے۔ ابھی دیکھو تم کتنا گبرو جوان ہے، خوبصورت مرد ہے، ایسے مرد کی شادی گھر والے جلدی کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتی اسے اپنی طرف سے اچھے سے وضاحت دے رہی تھی، جب مقابل اچانک اس کی جانب جھکایا تو گلبرشا نے مقابل کی اس حرکت پر اپنی حسین آنکھیں مزید بڑی کر لی جس میں وہ ڈوب چکا تھا نہ جانے کب سے۔ تو میں خوبصورت مرد لگتا ہوں؟ اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا، جبکہ آنکھوں میں کوئی جذبہ کروٹ لینے لگا۔ گلبرشا نے اس سوال پر جھٹ اسبات میں سر کو جنبش دی۔ تمہاری شہد رنگ بڑی بڑی آنکھیں، گھنی شیپ، مغرور نقوش، گورا رنگ اور یہ مضبوط اونچا قد، تم مرد کی خوبصورتی کے معیار پر پورا اترتے ہو۔ اس نے گویا اپنی بات کی وضاحت اس مرتبہ پوری اور واضح الفاظ میں کی تو مقابل نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ وہ اس کی جرأت پر تھر تھرا اٹھی۔ اگر میری شادی نہیں ہوئی تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ایک جذبے سے سوال کر رہا تھا، جب گلبرشا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے اٹھ کر بستر سے دور ہوئی۔ مقابل کو اپنا یوں جھٹکنا پسند نہیں آیا تھا۔ اسے لب بھیج کر گلبرشا کو سلگتی نظروں سے دیکھا جو اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی۔ مجھے تم سے شادی کبھی نہیں کرنی۔ اس کے صاف انکار پر وہ گویا سر سے پیر تک جل کر خاک ہوا۔ کیوں؟ مجھ سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ جواباً اسے بھی غصہ چڑھ گیا۔ دل گویا بڑبڑ کرتی آگ میں جلنے لگا۔ مجھے کسی بھی حسین مرد سے شادی نہیں کرنی، میں ایک عام صورت والے شخص سے شادی کروں گی۔ گلبرشا کی نرالی منطق سنتے مقابل بھونچکا سا رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا شاید اسے کوئی اور پسند ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ اب بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے وضاحت دو۔ وہ بری طرح جھنجلایا۔ حسین مرد کو اپنے حسن پر بڑا ہی ناز ہوتا ہے، وہ ہر لڑکی سے افیئر چلانے کی تگ و دو میں رہتا ہے۔ ہمارا سہیلی کا بھائی بھی بہت خوبصورت ہے، اس کی نیلی آنکھیں ہیں لیکن بلا کا دل پھینک۔ شادی کے بعد بھی اس کی کئی دوستیاں ہیں، جس وجہ سے ہر دوسرے دن ان کے گھر جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس اس وقت سے ہم نے سوچ لیا کہ ہم کسی خوبصورت مرد سے شادی نہیں کرے گا۔ ہم اپنے مرد کو لے کر بڑا پوزیسو ہے۔ میرا مرد بس میرا ہوگا، میرے علاوہ اسے کوئی دوسرا نہیں دیکھے اور نہ ہی اس کی نظروں میں میرے علاوہ کوئی بستا ہو۔ گلبرشا نے کویا کھل کر اپنی بات کہی تو مقابل کے دل پر ٹھنڈی پھوار برسی۔ یہ معاملہ وہ آرام سے حل کر سکتا تھا۔ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، جس کی مثال تمہارے بابا ہیں۔ انہوں نے تمہاری ماں کی محبت میں اپنی عمر لگا دی، لیکن اس محبت میں شراکت داری نہیں کی۔ مقابل کے الفاظ نے گلبرشا کو متاثر کیا تھا۔ ہاں وہ یہ بات تو درست کہہ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری یادداشت واپس آتے ہی تم تو ہم کو بھول بھال بھاگ جائے گا۔ نہیں، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اپنی بات پر قائم گلبرشا تیز تیز بولتی کمرے سے بھاگ نکلی تو وہ ٹھنڈی آہ بھرتا بستر پر ڈھیر ہوا، جب پاؤں پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے اس کے لبوں سے کرہا نکل آئی۔
आज उसके बाबा जल्दी आ गए थे ताकि वो अपनी सहेली के घर मेहंदी की तकरीब में जा सके। गुलबशा खुशी खुशी तैयार होकर हाथ में शॉल पकड़े उनके कमरे में दाखिल हुई तो इस मर्द की जज्बे लुटाती नजरें उसके दिलकश वजूद के गिर्द लपटी। सिया रंग की पठानी फ्रॉक पहने, आंखों में भर भर काजल लगाए, गुलाबी लबों की काली लाली बढ़ाए, कानों में झुमकियां और कलाइयों में चूड़ियां भराए चढ़ाए गुलवर्षा बला की हसीन लग रही थी। वो सच में उसके दिल की वसंत पर किसी मलका की तरह बरजुमान हो चुकी थी। उसे देखने, उसे सराहने को मुकाबिल का दिल बेकरार रहता था। वो बहुत मासूम थी, आम लड़कियों से मुख्तलिफ, हर झूठ और रियाकारी से पाक। जो दिल में होता वही जुबान पर भी होता। इस वक्त भी उसके यूं बेखुदी से देखने पर गुलवर्षा ने उसे आंखें दिखाई तो मुकाबिल ने मुस्कुरा कर इसके गुस्से को कबूल किया था, लेकिन नजरें नहीं मोड़ी। ऐसा करके वो दिल की बेअदबी कर थोड़ी कर सकता था। अच्छा बाबा, हम चलता है, 9 बजे तक लेने आ जाना, नाक चिढ़ाकर कहते हैं। उसने हाथ में पकड़ी शॉल खुद पर अच्छे से लेते अपना हसीन चेहरा भी ढांप लिया तो मुकाबिल के दिल को सुकून मिला। वो दुपट्टा भी सलीके से ओढ़े हुए थी, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो पर्दे का एहतमाम करती, जो मुकाबिल को मजीद गुलवर्षा का शदाई करता। बशीर खान उसे दरवाजे तक छोड़कर वापस अपने कमरे में ही आए और अपने पलंग पर बैठ गए। तुम अब काफी बेहतर हो, लेकिन तुम्हारे सर पर चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त मुतासिर हुई है। डॉक्टर कह रहा था कि हो सकता है कि अचानक ही तुम्हें सब याद आ जाए, बस तुम दवाएं खाते रहो। वो आज दुकान से वापसी पर हॉस्पिटल से होते हुए आए थे और इस वक्त इसी बारे में बात कर रहे थे। मैं आप पर बोझ बन गया हूं ना? मुकाबिल का अंदाज बेबसी और शर्मिंदगी का लपेट में आया तो वो बेचारी बुरी तरह बौखलाई। अरे नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं। दरअसल हमको तुम्हारे घर वालों का फिक्र है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें खौफजदा कर रहा होगा, न जाने तुम जिंदा भी है या नहीं। उन्हें तो इल्म नहीं है ना इस बात का। बस हम तो उनकी फिक्र में बोल रहा था। हमने डर कर तुम्हारी तस्वीर भी कहीं नहीं डाली। इस तरह इंटरनेट की वजह से तुम घर वालों से मिल जाता, लेकिन इसमें खतरा भी है कि कहीं तुम्हारा दुश्मन तुम तक ना पहुंच जाए। वैसे तुम्हारे पास से कुछ सामान निकला है, हम वो देखता है, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। वो से वजाहत देते एकदम पुरजोश हुए। भला बताओ, हमें ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? शायद हम ज्यादा ही बुरा हो गया। खुद को मलामत करते हुए अलमारी के सिमत बढ़े और जब वापस आए तो उनके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें उसी का मोबाइल, वॉलेट और घड़ी बरामद हुई। घड़ी की कीमत बताती थी कि वो रईस खानदान से ताल्लुक रखता है। मोबाइल भी एक आला ब्रांड का था। वॉलेट को अलबत्ता उन्होंने खोलकर नहीं देखा। उसने सबसे पहले अपना वॉलेट बिस्तर पर खाली किया। 5 और 1000 वाले कई सारे नोट के अलावा क्रेडिट कार्ड, लाइसेंस और एनआईसी कार्ड भी मौजूद था। बस पानी में भीगने की वजह से अंदर मिली चीजों की हालत कुछ खराब थी। उसने एनआईसी पर अपना नाम पढ़ा, मीर साइम वल्द मीर गुलाम मोहम्मद। उसने बाआवाज बुलंद अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम लिया। जब बशीर खान ने उसके हाथ से कार्ड लेकर वहां मौजूद पता बगौर देखा, ये जगह तो सवाल से काफी दूर है, इस पते पर किसी को भेजना पड़ेगा। वो पुरसोच अंदाज में बोले, हौले से बड़बड़ाए, ये फोन अगर ऑन हो जाता है तो मसला ही हल हो जाएगा। मीर साइम को गोया खुद तक आने का सुराग मिल गया। मैं कल इस फोन को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे जानने वाले की एक दुकान है, वो फोन ठीक करता है। अल्लाह करे ये फोन ठीक हो जाए। बशीर खान पूरे उम्मीदी से गोया हुए तो मीर साइम ने झट उनकी बात पर आमीन कहा। फोन ऑन हो जाने की सूरत में वहां उसे रब्ता करने के लिए यकीनन कई नंबर मिल जाते। जायशा रात के खाने के बाद मेरे वाली की काफी कॉफी तैयार कर ली थी। जब कौसर वहां आई, उसने माँ जान के लिए दूध गर्म किया था और साथ ही जैतून के तेल की डिब्बा कैबिनेट से निकाला। ये किसके लिए है? कॉफी मग में निकालती वो बेसाख्ता ही पूछ बैठी। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ऐसे में माँ जान की पिंडलियों में दर्द रहने लगता है, तो मैं हर रोज इनके पैरों की मालिश करती हूँ। इससे इन्हें आराम मिलता है और चलने फिरने में भी आसानी रहती है। वो नरमी से इसके सवाल का जवाब देती, इससे पहले पलट जाती कि जायशा ने उसे पुकार लिया। कोई कौसर बाजी, क्या आज इनके पैरों की मालिश मैं कर दूं? इसके आदि से पूछने पर वो नरमी से मुस्कुराती उसे रजामंदी दे गई। और आज माँ जान ने तुम्हें देख गुस्सा किया तो? उसने जायशा को आजमाना चाहा। तो मैं उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लूंगी, वो भी तो मेरी माँ जैसी हैं। आप बस ये कॉफी सरदार साहब को दे आए। कॉफी की ट्रे कौसर को देती वो उसके हाथ से दूसरी ट्रे पकड़ती किचन से निकल गई तो कौसर भी कॉफी की ट्रे पकड़े सरदार मीर गौरी के कमरे में चली आई। वो लड़की कहाँ है? जायशा की जगह कौसर को देख उसके माथे पर नमूदार हुए। सरदार साहब, कॉफी तो जायशा ने ही बनाई थी, बस लाई मैं हूँ। दरअसल वो माँ जान के पास गई हैं, कह रही थी कि आज वो उनके पैरों की मालिश करेंगी। उसे मुकाबिल के सर्द लहजे से यही अखज़ हुआ था कि वो जायशा पर गुस्सा है। जभी वो उसकी अच्छाई बयान करने लगी थी, जिसके जवाब में वो उसे जाने का इशारा देकर कॉफी का मग उठाए लबों से लगा गया। तो तुम्हारा नाम जायशा है? तो जायशा, देखते हैं तुम आखिर चाहती क्या हो? वो जेरे लब बड़बड़ाया था। वही दूसरी तरफ जायशा माँ जान के कमरे में दाखिल हुई थी। उसने दूध का गिलास कवर करके साइड टेबल पर रखा और एक नज़र करवट के बल लेटी माँ जान को देखा। वो उनके बेड के किनारे बैठी थी। उसने उनके पैरों के ऊपर से कंबल को हटाकर माँ जान के पाँव के नीचे तौलिया रखा, जो उसने साइड टेबल से उठाया था। कौसर किचन में जाने से पहले ये तौलिया बाहर निकाल कर रख गई थी। इस काम से फारिग होते बगैर देरी किए वो हाथों में तेल लेती उनके पैरों का मसाज करने लगी।
तुम्हें इल्म है कौसर, साइम भी अक्सर यूं ही मेरे पैरों से कंबल हटाकर कितनी कितनी देर मेरे पाँव का मसाज किया करता था। आज तुम बिल्कुल इसी की तरह मसाज कर रही हो, मुझे सुकून मिल रहा है। बेटी की याद आई तो उनका लहजा भीगा था। वहीं से आयशा की आंखें भी भीग गई। गौरी जितना खामोश तबाह है, साइम उसके बिल्कुल उलट हर दम मुतहरिक रहता। घूमने फिरने का तो वो ऐसा शौकीन है कि उसने 24 साल की उम्र में पूरा मुल्क घूम डाला। वो तो मुल्क से बाहर भी जाना चाहता था, लेकिन गौरी ने उसे अकेले जाने नहीं दिया। वो हंगामा परवर था। वहाँ कौन देखता उसे? गौरी। गौरी को इसकी बड़ी फिक्र रहती थी। उसने तो कभी काम का ज्यादा बोझ भी उस पर नहीं डाला। बहुत लाड उड़ाता था वो अपने भाई के। वो बोलते बोलते आबदीदा हो गई तो जायशा के रोने में रवानी आई। वो बेआवाज सर झुकाए रोती जा रही थी, लेकिन उसके हाथ एक लम्हे को भी नहीं थमे। सरदार मीर गौरी जो दरवाजे की चौखट के साथ लग कर खड़ा कॉफी के घूंट पीते उसे ही नजरों में रखे था। न जाने क्यों, लेकिन जायशा के आंसू उस पर अलग तरह से असरअंदाज हो रहे थे। औलाद का दुख माँ को दीमक की तरह खाता है, वो यासियत से कहती उसे दर्द भरी हिचकी लेने पर मजबूर कर गई थी। जब अपने पैरों पर गिरते आंसू की नमी ने उन्हें चौंका दिया तो उन्होंने पट से अपनी आंखें खोली और सीधा होकर सर झुकाए रोती हुई सायशा को देखा तो तेजी के साथ उठकर बैठी। तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इनके सदमे से भरी आवाज पर जायशा घबराकर बेड से उठ खड़ी हुई तो उसके पांव बुरी तरह लड़खड़ाए, जिस सबब वो मेज की तरफ उलट गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो संभल ही नहीं पाई और मीर गौरी फासला होने के सबब उसे बचा नहीं पाया। उसके गिरते ही कमरे में कांच टूटने और चीखने की गूंजती आवाज ने इन दोनों माँ बेटे के चेहरे पर घबराहट तारी कर दी। बशीर खान के किसी दोस्त को गाड़ी का हादसा पेश आ गया था। उनके पास कॉल आई तो वो परेशानी में घर से निकले। गुलवर्षा को इतला देना उन्हें याद नहीं रहा था। हाँ, वो मीर साइम को बताकर उजरत में निकले थे। गुलवर्षा खाना तैयार करके गई। उसने कुछ देर पहले ही बशीर खान के साथ खाना खाया, लेकिन दवा अभी तक नहीं ली थी। उसे इन 2 हफ्तों में गुलवर्षा के हाथ से दवा खाने की आदत हो गई थी। वो जिस तरह चिड़चिड़ करके भी उसके आसपास रहकर उनका ख्याल करती थी, मीर साइम को इस सब की आदत हो चली थी, जो मोहब्बत से ज्यादा मोहलिक थी। इसका पास होना, इसकी आवाज, इसके नखरे गुस्सा करने की अदा, खोया वो मुकम्मल गुलवर्षा का असीर हो गया था और वो उल्टा उससे दूर भाग रही थी। पागल लड़की। सुबह हुई ला यानी तकरार याद करते मीर साइम के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। 9 बज रहे हैं। गुलवर्षा ने लेने के लिए तो बाबा को बुलाया था। वो इस वक्त अकेले कैसे आ सकती है? परेशानी के आलम में रिस्ट वॉच देखते वो बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। गरम जैकेट और मोजे तो उसने पहन रखे थे, साथ ही उसने बैठ के सिरहाने रखी मर्दाना शॉल भी खुद पर लिपेट ली। काले लिबास पर क्या कैमल कलर की शॉल लिए अपनी सिल्की बिखरे बालों और घनी शेव के साथ वो बड़ा का वजीहा लग रहा था। वो चल सकता था, लेकिन दबाव की बदौलत उल्टी टांग में दर्द था, जिस वजह से वो अपना सारा वजन सीधी टांग पर डाल गया। बशीर खान ने उसे एक मोटा डंडा दिया था ताकि वो उसके सहारे आराम से चल सके। उसने पलंग की साइड से वो डंडा उठाया, कील पर टंगी चाबी उतार कर घर से बाहर आते उसने दरवाजे को ताला लगाया। सर्दियों की शुरुआत थी। हवा में अच्छी खासी खनकी शामिल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते चल रहा था। गुलवर्षा ने बातों बातों में बताया था कि उसकी सहेली का घर 2 गली छोड़ के था। वो इस तरफ ही जा रहा था। इस गली में जाकर शादी वाला घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। वहां तो अलग ही रौनक नजर आ रही थी। इनकी अपनी गली में तो सन्नाटा छाया हुआ था। वो दूसरी गली को पार करते तीसरी गली तक पहुंचा ही था कि उसे गुलवर्षा एक अजनबी के साथ सामने से आती नजर आई। तो मेरे साइम के माथे की तेवरी चली। गुलवर्षा चेहरा झुकाए चल रही थी तो उसके साथ चलता जवान उसे पुरशौक नजरों से देखता मीर साइम के गुस्से को हवा दे रहा था। वो गैस गजब के आलम में इन दोनों के साथ आ ठहरता तो गुलवर्षा अपनी धुन में चलती उसकी चट्टानी वजूद से टकराकर लड़खड़ाई, जो उसने गुलवर्षा का बाजू पकड़कर उसे खींचकर सीधा करा। ये क्या बदतमीजी है? उसके दोस्त के भाई के फोन में उबाल चढ़ा था। इससे पहले उनके बीच कोई तल्ख कलामी होती, गुलवर्षा घबरा कर बोल पड़ी। अकरम लाला, हम इनको जानता है, ये मुझे लेने आए हैं। सामने वाले के लिए लाला लफ्ज सुनकर मीर साइम का गुस्से का गिरा कुछ नीचे आया। लेकिन तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें नहीं देखा मैंने। अकरम को इस इंसान का हक जताता अंदाज पर जहर लगा। ये मेरे खाला का बेटा है, यहाँ मिलने आए थे हमसे, लेकिन एक हादसे का शिकार हो गए। कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही ठहरे हुए हैं। गुलवर्षा की फराटे भरती जबान को उसने दाद देती निगाहों से देखा। तुम अपने लाला को एक और रिश्ता बताना भूल गई कि हम बचपन के मंगेतर भी हैं, और ये अकरम साहब यकीनन तुम्हारे दोस्त के भाई होंगे। चलो अब बहुत हुआ तारुफ, घर की राह लो। संजीदगी से कहते वो बड़े हक से गुलवर्षा का हाथ पकड़े वहां से निकला तो अकरम ने हीना दोस्त नजरों से उसके पुष्प को ओझल होने तक देखा। आपने इनसे झूठ क्यों बोला? आगे आते ही वो तीखे चतुरने से मुस्तफसर हुई तो मीर साइम के चलते कदम ठहरे। क्योंकि मुझे तुम्हारे अकरम लाला के इरादे नेक नहीं लगे। तुमने शायद नोट नहीं किया कि वो शख्स तुम्हें किस नजर से देख रहा था। अगर मैं मंगेतर वाला झूठ नहीं बोलता तो उसने कुछ दिनों बाद अपना रिश्ता लेकर आ जाना था, और वो भी तुम्हारे लिए। मुकाबिल के जली कटे अंदाज पर गुलवर्षा ने मुंह फुलाया।
आप आराम से भी मुझसे ये बात कह सकते थे, ज़रूरी नहीं तंज के तीर चलाना। पबगी से कहते वो तेज तेज कदमों से आगे की जानी बढ़ गई तो वो जल्दी जल्दी अपने कदम आगे को बढ़ाने लगा। जब अपनी गली की सिमत मुड़ते उसे गुलवर्षा कहीं दिखाई नहीं दी। गुलवर्षा? मीर साहब ने उसका नाम पुकारा, लेकिन बरसों सन्नाटा सा महसूस हो रहा था। बस ठंडी हवाएं थी और सरसराटे पेड़ की पत्तों की आवाज़ें। पागल लड़की शायद घर में चली गई। बड़बड़ाते हुए वो अपने घर की सिमत आया, लेकिन डोर लॉक ही था। उसने चाबी से ताला खोला और अंदर चला आया, लेकिन पूरा घर वीरान पड़ा था। मीर साहब का दिल एकदम से घबराया। वो घर नहीं आई तो बीच में कहाँ गई? ये सोचने से पागल करने को काफी थी। वो अपना दर्द भूले दौड़ने के अंदाज में फिर से घर से निकला, तो वही दूसरी तरफ वो उस शैतान सिर्फ नसीर की गिरफ्त में मचल रही थी। उसने उसे सख्ती से दबोच रखा था, जबकि मुंह पर अपना हाथ जमाया हुआ था, जिस वजह से वो हरकत नहीं कर पा रही थी। उसकी नम आंखें आसमान की सिमत उठी। फिर दिल ने शिद्दत से अपने बाबा को पुकारा। वो शख्स उसे खींच कर अंदर की तरफ ले जा रहा था, जबकि वो मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। इसके खींचातानी में उसकी शॉल उतरकर जमीन बोझ हुई। साली, कितनी मोहब्बत से तेरा रिश्ता भेजा था, लेकिन तुझे और तेरे बाप को इस वक्त रास नहीं आई। अब जब तुझ पर मैं अपनी छाप छोड़ूंगा तो तेरे बाप को तुझे मेरे हवाले करना ही होगा। उसे बिस्तर पर बुरी तरह पटकते वो उस पर हावी हुआ था, जबकि वो मुसलसल मज़ाहमत करती उसे खुद से दूर कर रही थी। अल्लाह की लानत होगी तुम पर, छोड़ो मुझे। उसने बुरी तरह मुकाबिल को खुद से दूर करना चाहा था, जब नसीर का जोरदार थप्पड़ उसका दिमाग सुन कर गया। वो इस लम्हे एकदम साकित पड़ी रह गई थी।